Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा. डियर क्लास, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे. ये चैप्टर नंबर 3-5 का ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल को जमा और माइनस कैसे किया जाता है. तो आज हम इसको समझने से पहले अपनी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को दोहराएंगे कि पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर टर्म. एक या एक से ज़्यादा टर्म पे मुश्तमिल होते हैं ये जो पॉलिनोमियल्स होती हैं. और पॉलिनोमियल्स का मतलब है मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे अरकान. इन ईच ऑफ द एक्सपोनेंट, और इन पॉलिनोमियल्स में या इन एक्सप्रेशंस में जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो वेरिएबल कि ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर या कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. तो इसको दोहराने के बाद डियर क्लास, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द पॉलिनोमियल्स, के प्लस और माइनस कैसे किया जाता है. बहुत आसान है. इसमें याद रखिए कि अब मिसाल के तौर पे आपके सामने ये दो पॉलिनोमियल्स हैं. अब इनको जमा कैसे करना है. 4x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस 6x प्लस 9 प्लस दरमियान में लगा दिया, और ये नहीं, एक दूसरी पॉलिनोमियल x की 4 माइनस 3x की 2 प्लस 6x माइनस 4. तो डियर क्लास, याद रखिए कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म में ऐड किया जाता है. इनकी एक जैसी नज़र आने वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में किया जाता है. यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जिन टर्म की पावर सेम होगी उनको आपस में ऐड करेंगे, और जिनके वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल और पावर अगर सेम होंगी तो उनको आपस में ऐड करेंगे. तो डियर क्लास देखिए, इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देखिए x है जौन सा, इसमें एक ही वेरिएबल है, और इसको आप कैसे करेंगे इस सारी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी. तो डियर क्लास, इसको देखिए और साथ साथ मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन भी करूँगा. नाउ सी द वीडियो. When we add and subtract polynomials, the key is to combine like terms because we want a single x to the fourth term, a single x cubed term, and so on for any exponents that happen to be present in the expressions. When we combine like terms, this is the same application of the distributive property that we have already learned. Just as 5x plus 4x is equal to the quantity of 5 plus 4 times x, or 9x, this will apply to 5x cubed plus 4x cubed. We can ignore the exponent for a moment because we can simply recognize that they match. If they match, it doesn't matter what the term is. We will only manipulate the coefficient. 5x cubed plus 4x cubed may as well be 5 apples plus 4 apples, where the symbol of the apple can be taken to represent x cubed. Once we see things that way, it is easy to see how these terms add together to become 9x cubed. This is also apparent when we apply the distributive property, as x cubed could operate across the sum of 5 plus 4. Now let's add two whole expressions together. 4x cubed plus 2x squared minus 6x plus 9 will be one expression, and the other is x to the fourth minus 3x squared plus 6x minus 4. If we want to add these together, there are several ways we could do it, and whichever way works best for you is just fine. We could just write a new expression with all of these terms in a line if we wanted. Then it's just a matter of identifying like terms and adding them together. However, a slightly tidier approach, if you value that sort of thing, could involve putting one expression over the other, so that we can do arithmetic just the way we did with small numbers. If we do this, it is important to notice the degree on each term and make sure the exponents are lined up properly so that we add or subtract the correct terms. This could involve leaving a blank space if a particular exponent is not present in an expression, like this one, which does not have an x cubed term. This kind of bookkeeping will help us avoid making a careless error. Now with everything lined up, we just add. X to the fourth is by itself, so we leave it alone. Same with 4x cubed, that will stay as is. Then we have 2x squared minus 3x squared, which leaves us with negative x squared. Negative 6x plus 6x leaves us with 0 for the x term, and 9 minus 4 is 5. So x to the fourth plus 4x cubed minus x squared plus 5 will be the answer.
subtraction is essentially the same. We just have to be a little more careful about our signs. Let's say we keep each expression as it is, but we subtract the second one from the first. ये क्लास इसमें देखिए, जिस तरह आपने पीछे देखा कि आपकी जो वीडियोस थी, जो वीडियो को जब चलाया आप देखें कि इन टर्म्स को उसने कहा कि जमा करना है। तो इनको जमा करने का जो तरीक़ाकार था वो ये है कि इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दें। अगर आप इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म नहीं करते तो हम इनको लाइन अप कर लेते हैं, यानी कि इस वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं और इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। तो इसको किस तरह से किया जाता है डियर क्लास, वो भी देखिए। और अब आपने देखा इनको प्लस कैसे करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, यानी कि x की पावर 3 है तो आपने इसके नीचे भी वही पावर लिखनी है जिसकी पावर x की 3 होगी। तो डियर क्लास देखिए ज़रा। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखें आप कि अब देखें ये 4x की 3 + 2x हमने ऊपर वाली टर्म को ऊपर लिख लिया, नीचे वाली टर्म को नीचे लिख लिया। अब ऊपर भी 4 टर्म थी, नीचे भी 4 टर्म है, हमारे पास पता चल गया। अब हमें जानना ये है कि इनको लिखने का तरीका, इनको लाइन अप करने का तरीकाकार क्या है कि पावर और वेरिएबल सेम हो उनको एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है। जैसे देखें यहाँ पे x की पावर 3 है और नीचे x की पावर क्या है 4, तो हम इसको x की पावर 4 को x की पावर 3 के नीचे नहीं लिख सकते, हम इसको एक साइड पे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर बड़ी है तो इसको शुरू में लिखेंगे। तो इसके नीचे हम अपनी जगह खाली छोड़ देंगे या 0x की पावर 3 लिख देंगे। 0x की पावर 3 से मुराद होगा यानी कि 0 ही है वो, और बाकी x की पावर 2 है उसके नीचे वही वैल्यू आ रही है x की पावर 2, और ये x है, ये भी x है, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, उसके नीचे भी कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे अगर इसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि x की पावर 3 के नीचे x की पावर 4 है। अब हमने इसको लाइन अप कर लिया, यानी कि x की 4x की पावर 3 थी उसके नीचे 0x की पावर 3 लिख लिया, यानी कि इसका मतलब 0 ही है। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है यानी कि 0 कर देता है। ये x की पावर 4 थी, इसके ऊपर अगर आप कोई पावर लिखना चाहते हैं इस तरह से 0x की पावर 4 यानी कि ये 0 ही है, तो इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। अब इसके नीचे हमने गलत जगह भी खाली छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी पावर्स को उनके नीचे लिखा हुआ, बाकी सब ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल। अब हमने इनको प्लस किया तो देखें ये 0 की पावर 4 0 थी यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, वो क्या होता है 1, तो हमारे पास क्या आएगा x की 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x की 3 है और नीचे 0 है, तो हमने ऐड करना है 0 में, तो क्या आएगा आंसर 4 ही आएगा। और वैल्यू क्या है, इनके दोनों के साथ साइन प्लस का है तो प्लस का आएगा। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आपने ये देखना बड़ी वैल्यू के साथ, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है वो आप लगाएंगे। अब ये -3 है, ये प्लस का 2 है, तो -3 से प्लस का 2 निकाला जाए तो बाकी कितना बचता है 1x। तो आप ये 1x की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर 1 ना भी लिखें तो इससे मुराद यही होता है कि यहाँ पे क्या है 1। तो उसके बाद क्लास देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 6 में से 6 को माइनस कर दें तो 0 बचता है, तो जैसे 0x लिखेंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आ रहा है, वेरी गुड क्लास, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस करते हुए आपने बड़ी वैल्यू के साथ जो नंबर होगा, साइन होगा वो आप लगाएंगे। अब 9 - 4 इज़ आंसर इज़ 5, तो ये आपका आंसर है। अब ये 0x वाली जो टर्म है इसको आप आंसर लिखते हुए इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो डियर क्लास ये था आपका प्लस। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हुए बेटा ये ख्याल किया जाए कि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपने माइनस का साइन लगाना है। माइनस लगाने के बाद जो नीचे वाली टर्म्स के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, मतलब यानी कि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। इनके जब आप इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, लाइन अप करके लिखते हैं पावर्स के नीचे और वेरिएबल्स के नीचे जैसे हमने लिखा हुआ है, तो माइनस करते हुए नीचे वाले नंबर्स की जो नीचे वाली पॉलिनोमियल होती है उसके आप साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करने के बाद देखें x ये तो 0 है, यहाँ पे क्या आएगा x की 4, और उसके साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का, तो -x की 4, और 4 में से 0 निकालना है और इसके साथ साइन कौन सा आएगा माइनस,
तो 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 ही आएगा, और इस बड़ी वैल्यू के साथ नंबर कौन सा है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। और आगे देखें यहाँ पे प्लस है, ये माइनस था तो माइनस कर रहे हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस। और जब 3 के साथ प्लस आ जाएगा मतलब ये है कि 3b और 2 दोनों जमा हो जाएंगे, तो ये दोनों जमा होंगे तो क्या बनेगा 5, और x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है कि माइनस माइनस क्या होते हैं, सेम साइन प्लस होते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो ये 12 बन जाएगा 12x। इसके साथ भी माइनस होगा, इसके साथ भी माइनस होगा, तो आंसर में भी हम क्या लगाएंगे माइनस। और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी का 4 का प्लस और प्लस का 9, तो ये कितने बन जाएंगे 13। तो देखिए डियर क्लास, Let's say we keep each expression as it is, but we subtract the second one from the first one. Now we are subtracting x to the fourth from 0x to the fourth. That gives negative x to the fourth. Then it's 4x cubed minus 0, so that term stays as it is. Then it's 2x squared minus negative 3x squared. Remember that subtracting a negative number is the same as adding the positive version. So this becomes 2x squared plus 3x squared, or 5x squared. Negative 6x minus 6x is negative 12x, and 9 minus negative 4 is 13. And this is how we subtract one polynomial from another. तो डियर क्लास ये हमारा मुकम्मल हुआ, जैसे हमने पीछे किया मुकम्मल। जैसे यहाँ पे देखिए साइन माइनस का था, ये माइनस का आ गया, अब प्लस का था प्लस का आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन था चेंज हुआ तो ये प्लस का साइन बन गया, यानी कि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस, प्लस का साइन। अब ऊपर माइनस था नीचे भी माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस को चेंज माइनस में कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो किया प्लस है लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, और ये भी प्लस हो गया तो इन दोनों को जमा किया तो ऊपर भी प्लस था नीचे भी साइन चेंज होने की वजह से प्लस आ गया तो 13 बन गया। तो डियर क्लास इस तरह से आपने इसको करना है, और आपकी एक्सरसाइज है जो उनसी 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इस तरह से करेंगे, यानी कि उसने बोला है कि ऐड करें, पहली टर्म को लिखेंगे, पहली टर्म को लिखने के बाद आपने क्या करना है हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, यानी कि 3x की 2 है हाईएस्ट, इसको शुरू में लिखेंगे, फिर 2 के बाद कौन सी पावर आती है 1 वो लिखेंगे, फिर लास्ट में कांस्टेंट, उसके मुताबिक फिर लाइक टर्म्स को उनके नीचे लिख के ऐड करेंगे, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा। इसी तरह से फिर आपने बाद में सब्ट्रैक्ट करना है p फ्रॉम q, यानी कि पहले q की वैल्यू लिखनी है आपने ये वाली, बाद में जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपने ऊपर लिखनी है, और ये फिर आपने लाइक टर्म्स देख के नीचे वैल्यू लिखी इसको माइनस कर देना है, जैसे आपने वीडियो में देखा। तो डियर क्लास हम पहला पार्ट करते हैं। देखें पीछे मैंने 3x की पावर थी यहाँ पर, तो मैंने देखे कहाँ पे लिखा है शुरू में 3x की पावर लिखी, उसके बाद क्या था इसमें 2x प्लस 1 मैंने बाद में लिखा है, इनकी तरतीब दे दिया। अब दरमियान में कोमा है, अगली पॉलिनोमियल क्या है 3x माइनस 4 माइनस 2x, तो मैं लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखूँगा, तो ये देखें स्केयर वाली वैल्यू ये है तो ये माइनस है तो मैंने ये माइनस लिखा, माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4। ये प्लस 3 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये है कि इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का। तो उसके बाद देखें माइनस 4, फिर इसी तरह से अगली टर्म को मैंने लिखा एक्स की स्केयर, ये देखें एक्स का स्केयर लिखा, उसके बाद देखें माइनस एक्स है, माइनस 5x है और प्लस 4, तो मैंने ये लिखा आपके सामने। तो रियल क्लास अब हमने इनको प्लस करना है, 3 में ये माइनस है तो कर देंगे तो 2 कितना बनेगा 1 बचाएगा, तो और इस 1 को इस 1 में ऐड कर देंगे, बाकी 1 बच गया। अब देखें ये 1 है, यहाँ पे कोई मत नहीं है तो मतलब ये कि 1 है, तो एक जो बच गया था वो इसमें जमा करेंगे तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर। अब देखें इन दोनों को जमा करें क्या बनता है 5, और नीचे वाला माइनस का है तो प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x, तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा लें या प्लस का लगा लें, एक ही बात है। तो डियर क्लास अब देखिए आगे 1 ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो देखें प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में इनके ख़त्म हो गए, इनकी ये भी प्लस का 4 और माइनस का 4 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाकी बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो डियर क्लास हमारा आंसर आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 0x, इसको लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, तो प्लस
1। तो डियर क्लास इस तरह से आपने इसको प्लस करना है और आपका जो होमवर्क है वो यही है कि एक्सरसाइज 5.2 को आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने अपनी नोटबुक पे करना है। आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ और वीडियो के मुताबिक जो आपने करना है इसको मुकम्मल करेंगे। तो डियर क्लास नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।